السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ پہلے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آج کی ویڈیو ایسی ہے جس کے بارے میں شاید ہمیں پہلے معلوم نہ تھا۔ انفیکٹ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا رسومات ہیں اور کیا ہے، لیکن آج جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنے غلط کانسیپٹ پہ تھے، بھلے وہ کوئی سا بھی فرقہ ہو۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ حضرت قاسم کی مہندی میں کیا ہوا تھا، یہ کس چیز پہ یہ رسومات بنائی گئی ہیں۔ یہ کچھ رسومات نہیں ہیں، یہ صرف ایک جھوٹی بہتان ہے نبی کی آل پر کہ نکاح ہوا، اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میدان کربلا میں کوئی ریسیپشن نہیں چل رہا تھا، وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ نبی کے دین کو بچایا جا رہا تھا۔ جس فرقے میں سب سے زیادہ اسے پایا جاتا ہے اسی فرقے سے ہم یہ کلپ میں نے لیا ہے اور اسے میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ بالکل سنیے اور ہدایت حاصل کیجئے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ رسومات جسٹ من گھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کوئی مہندی نہیں ہوئی۔ اتنا کامن سینس ہمارے پاس نہیں ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے لیکن مہندی پیسنے کو پانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلپ آپ سنیں، بڑی غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت قاسم کی مہندی سے متعلق بیان فرمائیں، آغا رہبر اس کو جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ آغا رہبر کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا مہندی ہوتی کیا ہے، چونکہ یہ بالکل ایک ہندی رسم ہے، خالصتاً ہندی رسم ہے، جو ابھی ہندوستان سے باہر نہیں گئی۔ بعض چلی گئی ہیں، بعض نہیں گئی ہیں۔ بالکل ہندوستانی رسم ہے جو عربوں کے ہاں رائج نہیں ہے، نہ اس وقت کے عربوں کے ہاں رائج تھی، نہ آج کے عربوں میں رائج ہے۔ مہندی شادی ہوتی ہے تو مائیں ہوتی ہیں، مہندی ہوتی ہے، یہ ہندی رسمیں ہیں ساری، اور یہ اب غریبوں نے محنت کی ہے اس پر، اور یہ لے گئے ہیں معصومین کی زندگیوں تک بھی کھینچ کے لے گئے۔ نہ، اصل مہندی اس کلچر کا حصہ نہیں ہے، دین میں تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ بھی جب شادیاں کرتے ہیں تو مہندی کا کوئی رسم، اسلامی تہذیب کے اندر مہندی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہندی تہذیب کا حصہ ہے یہ مہندی۔ اگر ان کا تعلق ہندی تہذیب سے تھا، واقعہ بھی ہندوستان میں ہوا ہے، پھر تو ہوگی کوئی چیز، سوچی جا سکتی ہے، لیکن تاریخ میں یا روایات میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور حضرت قاسم 13 سال کے تھے جب شہید ہوئے ہیں، سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، 2 سال بلوغ کی عمر سے بھی کم تھے۔ اور حضرت قاسم کی شادی جس بی بی سے کرائی جاتی ہے وہ ان کی بھابھی ہیں، حضرت حسن مصنع کی زوجہ ہیں، فاطمہ بنت حسین، فاطمہ کبریٰ۔ حضرت قاسم 13 سال کے تھے کربلا کے اندر، ابھی ایک نوخیز جوان، ابھی جوانی بھی نہیں آئی تھی، 13 سال کا بچہ۔ وہ یہاں بیٹھے ہوئے 13 سال کے بچے، دیکھیں کتنی عمر کے ہوں گے۔ یہ اشارہ کیا کہ ایک کتاب ہے روضہ الشہداء کے نام سے، ایک بزرگوار نے لکھی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ روئیں، عبادت کریں۔ انہوں نے کچھ اپنے تخیلات اس میں ڈالے، کچھ دوسری چیزیں، پھر اس کو ملا کے پھر اس سے آگے بات پھیلتی گئی اور دوسروں نے بھی اس کو خوب شاعرانہ رنگ دے دیا۔ ورنہ عربی کلچر نہیں ہے، ایرانی کلچر نہیں ہے، کسی اور قوم میں نہیں ہے، صرف ہندوستان کے اندر ہے یہ مہندی۔ اب حضرت قاسم کی عقد کا حضرت آیت اللہ جعفر ششتری نے لکھا ہے، وہ قاسم کا بدن کا اساسینیشن، قتل یزیدیت نے اس دور میں ایک ہی بار کیا، لیکن قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن خود چاہنے والوں سے ہر سال ہوتا ہے۔ کیریکٹر اساسینیشن کیا ہے؟ تہمت، شادی کی تہمت، مہندی، یہ سب قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن ہے۔ جبکہ نہ کربلا کے میدان میں شادی ہوئی، نہ قاسم دولہا بنے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا معاف کرے ہم سب کو۔ قاسم کی جو نسبت جس عورت سے دی جاتی ہے، کبریٰ سے، کبریٰ حضرت قاسم کی بھابھی تھی اور شوہر حسن مصنع زندہ تھے۔ 10ویں صدی میں
10वीं सदी में करबला के बाद 61वीं हिजरी यानी 10वीं सेंचुरी में मैन्युपुलेशन इस्लाम के अंदर बहुत हुआ। बहुत सारे रिवायतों को घुसाया गया, बहुत सारे चीजों को खत्म किया गया, बहुत सारे यानी लोगों को रुलाने के लिए न जाने क्या क्या किया गया। उसके अंदर ये रिवायत यानी जो असल रिवायत नहीं है, झूठ, तोहमत, उसके बाद से इस्लाम के अंदर आई। इत्तेफाक से इस रिवाज को इतना फूंका गया, आज इंसान की जमीन नहीं मानने के बावजूद भी इतना वो आदत कर चुका है कि वो नोहे में पढ़ता है पाबंदी से 7 मुहर्रम बयान करता है। बाज नोहे होते हैं, कुबरा ने कहा कासिम दूल्हा किस सोने बंद में सोते हुए हमारी तरफ चलता है। यहाँ पे नहीं मालूम ये कौन से नोहे चलते हैं हजरत कासिम के। खुदा की कसम वो मैदान शादी का मैदान नहीं था, वो जो कासिम के बारे में कहा जाता है। 14 साल का बच्चा, इमाम का भतीजा, इमाम का बेटा, जो मकसद सिर्फ करबला में कुर्बानी का मकसद, जो इमाम कदम ब कदम ये बताते हुए लेकर आ रहे हैं कि लोगों को वहां पे हमें कुर्बान होने जाना है। कभी ये नहीं बताया कि करबला में हमें जाकर कासिम का रिसेप्शन करना है, नहीं है। आप लोग तहकीक करें, आप लोग जाएं, देखें, स्टडी करें, खुदा रा कासिम को इस इल्जाम से बाहर करें, बरी करें। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है एक इमाम के फर्जंद पर। इमाम हुसैन का सर नीचे हो जाएगा। जिस इमाम हुसैन की बेटी से निस्बत दिया जा रहा है वो बेटी इमाम हुसैन की हसन ने मुसन्ना की बीवी है। हसन ने मुसन्ना इमाम हुसैन के दामाद और करबला के अंदर मौजूद रोज़े आशूरा वो जख्मी हुए जिंदा थे। वरना अगर खुदा न खास्ता शहादत हो जाती तो एक एहतमाल, वो भी शहादत के बाद इस्लामी कानून ये है कि 4 महीने तक, उसमें भी एहतमाल नहीं दिया जा सकता। ये तो खुली तुहमत राइज हो चुकी है हमारे दरमियान। ये जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, यूथ्स को नहीं बताएंगे, जवानों को नहीं बताएंगे, एजुकेटेड लोगों को नहीं बताएंगे, इंटेलेक्चुअल्स अगर खुदा न खास्ता खामोश रहेंगे, उलमा खामोश रहेंगे, कल के दिन इमाम हुसैन, इमाम ज़मान, हजरत ज़हरा, इमाम हसन सब दामन पकड़ेंगे, कहेंगे तू हमारे खानदान पर खुदा न खास्ता गलत रिश्ते का इल्जाम लगाया। यजीदियत ने एक बार असैसिनेशन किया था करबला में, हम तो हर साल कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। जवान, मैंने सुना कि आज कोई जाकिरा जो लेडी, मोहतरम लेडी यहाँ पर जो पढ़ती हैं सुबह में, उन्होंने इस रस्म और रिवाज को डिनाई किया बाकायदा, यानी कंडम किया है। यकीनन जुबान खोली, जुबान खोलने वाली इमाम के सामने बरी होती। महशर में जिस वक्त पेश किए जाएंगे हम लोग, खुदा पूछेगा तूने वो क्यों नहीं बयान किया जो इल्जाम लग रहा था। हम कहेंगे लोगों के डर से, लोगों के डर से। खुदा कहेगा तुझे लोगों का डर था, मेरा डर नहीं था। इमाम ज़मान कल के दिन सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। और ये जो जितने मसायब हैं, कासिम की शादी वगैरह, ये सब लेटेस्ट मसायब हैं, बनाए हुए मसायब हैं। ये कितने साल पहले बने, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। एक आजादारी की तारीख अगर आप देखेंगे, जिस आजादारी की तारीख में बाज ऐसे मसाइब जो मैन्युपुलेटेड, जो शुमाल ईरान में बनते थे और उसके बाद वहां से एक्सपोर्ट होते थे इराक के अंदर पढ़ा जाता था। उस दौर में आज की दौर की तरफ फिक्र नहीं थी। लोग किताब लेकर मिंबर पर बैठकर मसाइब सुनाते थे। उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है किसी को कुछ नहीं मालूम, और उस किताब को हुज्जत बनाया जाता था। आज जो नजदीक तरीन, करबला से नजदीक तरीन जो किताबें जो गुजरी हैं, यानी 200 साल के अंदर, 150 साल के अंदर वाली, उस किताब के बारे में कोई बात करने तैयार नहीं। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन दुरूद हो उस लेडी पर, उस मोहतरमा पर जो यहाँ पर औरतों के अंदर बयान की, क्योंकि औरतों में ज्यादा रस्म है ये मेहंदी का। कहां से मेहंदी करबला में?
पानी कहां से आया मेहंदी बनाने के लिए? मेहंदी सिर्फ पत्ते तो नहीं लगड़े जाते, मेहंदी की खुसूसियत है कि जितना आप घसेंगे उतना ही मेहंदी। और अरब में दामादों के लिए मेहंदी का रिवाज कहां पर है? आप तहकीक करें, अरब में आज भी जो शादियां होती हैं क्या वहां पर मेहंदी लगाई जाती है इंडिया पाकिस्तान की तरह, या मेहंदी इंडिया से गई है, या मेहंदी कई ऐसी जगह से गई है, मसलन इंडिया, श्रीलंका, रसूल के इमाम हुसैन के पास करबला बनाकर ले गए, वहां पर करबला में जाकर लगा दिया। तवज्जो करें, तहकीक करें, आप लोग खुदा तहकीक करें। कौम की हिमाकत के दलील ये होती है कि वो कौम की हिमाकत यानी वो कौम इडियट कौम होती है जो कौम सुनने के बाद तहकीक न करे। इमाम फरमाते हैं ऐसे लोगों को मैं अपने साथ नहीं रखता, इडियट्स को। हम कहते हैं हम दीवाने अहले बैत के, हम जो चाहे करेंगे, हम इमामों के दीवाने, मर मिटेंगे, फला करेंगे, दीवान हैं, अशार भी हैं, हम अली के दीवाने, या कहीं पर दीवाने। इमामों को दीवानों की जरूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है। नारे हैदरी, दुश्मनान अहले बैत पर, इंटेलेक्चुअल्स चाहिए इमाम को। दीन में फकी होना चाहिए इंसान। फकी से मुराद मुज्तहिद नहीं है, कम से कम दीन आमोजी होनी चाहिए हमारे पास। इतना तो हमारा लॉजिकल मैनर्स है कि हम देखें यह बात सही है या नहीं है। अगर कोई बात सुना दी जाती है तो इंसान तहकीक करता है ये बात सही है या नहीं है, या हम ऐसे ही कस्टम्स के तौर पर चलाते हुए जा रहे करबला को। ये रिवायतें इनकलाब करबला के ऊपर एक धब्बा है। मालूम है लोगों तक बात जाती है, लेकिन अफसोस ये होता है इंसान उसको रिपीट करे। फिर बात जगह तो ऐसे मैं मजलिस पढ़ के उतरा, ये सब बयान करके नीचे वही मेहंदी का नोहा शुरू हो गया। हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अलैना अल बलाग व अलैकल बलाग व अलैना अल हिसाब। अल्लाह कह रहा है तेरा काम है पहुंचाना, हिसाब मैं ले लूंगा। तहकीक करें आप लोग, कॉलेजेस में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले, औरतें, लड़कियां तहकीक करें। जी जनाब, जिस फ़िरके में ये बहुत आम है और भी फ़िरके इधर जाते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं इस मेहंदी को उठाकर, और इस नियत से कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मेरी बेटी की, मेरी बहन की। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दीन में नहीं है। खुदारा प्लीज़ कुछ भी करने से पहले, कोई मन्नत मांगने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा दीन की असलियत को देखिए। हदीसों पे जाके यकीन से मानिए और पढ़िए उसमें कि हमें क्या कॉन्सेप्ट दीन का दिया गया है हमारे बाप दादा के ज़माने से। चूँकि हमारे बाप दादा का जो पिछला गुजरा हुआ ज़माना है वो हिंदुओं के साथ गुजरा, तो कुछ रसूमात वहाँ से मैच कर ली गई, जैसे कि आज जूता छुपाई, दूध पिलाई, ये सब मन घड़त है, ये कुछ नहीं है। इससे दीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दीन में सिर्फ़ और सिर्फ निकाह जायज़ है और वलीमा, ठीक है जी। और आगे हम इस बात पे ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी भी फ़िरके को पॉइंट आउट नहीं करके बात करूँगी, लेकिन जो भी इन रसूमात में शामिल हो रहा है, भले वो कोई भी फ़िरका हो, वो गुनाह कर रहा है, वो नबी की उम्मत पर बहतान बांध रहा है। आपने इसमें सुना होगा कि वो अल्लामा क्या कह रहे हैं, जिस फ़िरके में सबसे ज़्यादा है उसी फ़िरके की मैंने ये वीडियो डाली है ताकि लोगों को पहुंच सके कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस चीज़ों को मानते हैं और भी मानते होंगे, हम भी मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मन घड़त है। प्लीज़ खुदारा एक दफ़ा इस्लाम को अच्छी नज़र से उठ के देखिए, लोगों की बातों पर ना। अल्लाह हम सबको शिर्क व बिद्दत से दूर रखे और जो असल है उन्होंने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी उस पर कायम व दायम रहें। अल्लाह ने जिसका जो दिल चाहता है वो मन घड़त बनाता है और घड़ देता है और लोग उस पर अमल करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है हम सोसाइटी वालों की। तो जिस फ़िरके में सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है तो ये आपने सुना, ये उन्हीं के ही अल्लामा कह रहे हैं, इस चीज़ को नाजायज़ करार दे रहे हैं। तो इससे हमें अकल लेनी चाहिए,
ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس پہ عمل کرنا اور کس پہ نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم نے جو ناجائز چیزوں کو کیا اور ان پہ عمل کیا، انہیں مانا اور ان پہ عقیدہ رکھا۔ اللہ ہمیں مغفرت فرمائے ہم سب کی، اور ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ نگہبان۔